Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So here you can see the syllabus of your class, term 1 and term 2. Units are divided in 4 parts in each term. So basically, in term 1, we have completed the rise of nationalism in Europe, resources and developments, water resources, and only one chapter is left in geography. And then in civics, we completed power sharing and federalism. Am I right? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So moving on to term 2, we have completed one chapter in history, nationalism in India. Okay. And apart from that, we haven't completed any chapter in this. So we are taking up the political parties as in civics. We are now today we will study this chapter because as in term 2, this is the first chapter in term 2 as in political parties. So today we are going to study this chapter. Okay. And then we'll take the minerals and energy from geography. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जो भी हमने बातचीत करी है इस विषय में. Ma'am, is all chapters of term 1 are completed? No, only one chapter is left in that term 1. This agriculture one in geography. We'll study this later. Okay. So we recently completed water resources. So we are not continuously studying only one part of the social studies. So we'll take this chapter after completing your political parties. Okay. So then there will be a variety of subjects. Cool. समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. So now moving on to this political parties. Okay. So as you all know, we have many political parties in our country. In India, we have democratic form of government. So there are many parties. So why do we need these political parties? The most important question arises whenever we talk about political parties, that why do we need political parties? What is the need of it and how they do functions, or what is the meaning of a political party? So such questions will be answered in this chapter, and after reading this chapter, you'll be able to answer such questions in your own way. Okay, so let's start with the overview. In this tour of democracy, we have come across political parties several times. ये जो tour चल रहा है हमारा democracy का, उसके अंदर हमने कई बार political parties के बारे में पढ़ा है. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and working of governments. हमने 9th क्लास के अंदर देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर उठती हैं, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जाता है, संविधान को डिजाइन किया जाता है, क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहती है, इलेक्शन के दौरान की जो राजनीति है वो किस तरह की रहती है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे सरकार को बनाया जाता है, कैसे उससे काम लिया जाता है. In this textbook, we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से पावर शेयरिंग वाली चीज को अंजाम देती हैं, किस तरीके से वो नेगोशिएट करती हैं, जो अलग अलग यहाँ पर वैरायटी है, डाइवर्सिटी है अलग अलग हमारे कल्चर के अंदर, उसको किस तरीके से वो पोर्ट्रे करती है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. अब इसका proper conclusion निकालने से पहले किस तरह का नेचर और किस तरह की काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का हमारी कंट्री के अंदर, उसके बारे में जानेंगे. We begin by asking two common questions, और ये शुरुआत करेंगे हम दो प्रॉपर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर के. पहला तो ये हमें पार्टीज की जरूरत क्यों होती है और क्या ये पार्टीज हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी हैं. Why do we need parties and how many parties are good for a democracy, और कितनी पार्टीज जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी हैं.
In the light of these, we introduce the national and regional political parties in today's India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. अब हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि कैसे नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। नेशनल वो पार्टीज जो पूरे नेशन के अंदर जिनकी ब्रांचेस होती हैं, रीजनल वो पार्टीज जो छोटी पार्टीज होती हैं और वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती हैं। देन फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या गलत है इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में और कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू जो है समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है इस पैराग्राफ में तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Then the question arises, why do we need political parties? हमें political parties की जरूरत क्यों है? जब भी हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं या ये शब्द सुनते हैं तो हमारे सबसे पहले कई सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं कि कितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे तो वहाँ पे कितनी ज्यादा पार्टीज हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं क्या भलाई हो रही है उनकी, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी यहाँ पर हैं वो क्या भला कर रही है हमारे देश का, ठीक है, और हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कितनी ज्यादा पार्टीज हैं, एजुकेटेड लोग कितने हैं जो इन चीजों को समझते हैं और अनएजुकेटेड लोग कितने हैं जो इस चीज को समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का असल मतलब क्या होता है, ये कितनी भलाई कर रही है हमारे देश के लिए, कोई पार्टी कितनी पॉपुलर है और वो जितनी पॉपुलर है क्या वो उतना अच्छा काम कर रही है। तो ये सारे ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छुपे हुए क्वेश्चंस हैं, उनके सबके जवाब आपको इसके अंदर मिलेंगे। So let's start with the first paragraph. Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. Political parties जो है वो आसानी से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. और अधिकतर जो आम जनता है उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज से, यानी वो डेमोक्रेसी का मतलब ही इक्वल है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. अब अगर आप ऐसे एरियाज में जाएं, बहुत ही रिमोट एरियाज जो कि जिनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है अर्बन एरिया से, वहां पर जाएं और वहां के कम पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करें तो आपको समझ में आएगा कि उनको संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है और सरकार का नेचर क्या है, एज इन की सरकार किस तरीके से काम करती है उसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। उनको संविधान के बारे में नहीं पता होगा, सरकार के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां पर काम कर रही हैं या देश में काम कर रही हैं या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं या कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी जानकारी उनको होगी। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। और उसी समय पे हमें ये भी समझना है कि ये जो विजिबिलिटी है इसको पॉपुलैरिटी नहीं समझ सकते, यानी कि ये जो जानकारी उनको मिली हुई है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। समझ में आया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Most people tend to be very critical of political parties. अब अक्सर कई सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। उनका मेन काम क्या होता है कि वो ब्लेम करते हैं पार्टीज को। अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी या पॉलिटिकल लाइफ के अंदर कोई भी चीज गलत हुई है तो वो सीधे उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है तो ये तो उस पार्टी की वजह से हो रहा है, या अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो ये उस पार्टी का काम है। They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with the social and political divisions. अब parties जो हैं उनको कैसे पहचाना जाता है? सामाजिक और राजनीतिक जो डिवीजन है हमारे यहाँ पर उसके बेसिस पर पार्टीज को पहचाना जाता है। यानी कि पर्टिकुलर किसी समाज को बिलोंग कर करके एक पार्टी बना दी गई तो उससे उसकी पहचान बन जाएगी, या उसका राजनीतिक जो वर्चस्व है या उसकी जो पहचान है उसको देख करके उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सो एंड सो पार्टी वाले जो हैं ये उस पर्टिकुलर समाज को बिलोंग करते हैं, या इस तरह से उनकी विचारधारा जो आइडियोलॉजी है
ये उस तरह से आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन है या उस तरीके से पहचाना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? अब इसीलिए ये बहुत चीज कॉमन है पूछना कि क्या वाकई में हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. करीब 100 सालों पहले बहुत कम ऐसे देश हुआ करते थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती हों। Now there are few that do not have parties। और आज की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है कि आज के जमाने में यहाँ पर कोई बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो। Then why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? तो ऐसा क्या हुआ कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब जगह होने लगी, ओमनी प्रेजेंट होने लगी, एज इन द गॉड, जैसे गॉड के लिए बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, वैसे ही कि सब जगह है, उसी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारे ही वर्ल्ड के अंदर जहां जहां डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो की जाती है, तो वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख जाएंगी। Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, वो काम क्या करती है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्यों हमें उसकी जरूरत है। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. What about others? No problem. Okay. No, ma'am. Then comes the meaning। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर सरकार के अंदर उनको कुछ पावर दी जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक आपको कुछ शब्दों में समझाया गया है। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ लोगों का समूह होती है, ग्रुप होता है जो साथ में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जीतने वाले को पावर मिल जाती है सरकार में। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good। और इनका मेन काम क्या होता है एक तरीके से कि ये अग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज पे, कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे जो समाज की भलाई करे, ठीक है, सबका एक साथ भला करे, उस चीज को लेकर के ये प्रमोट करते हैं। Since there can be different views on what is good for all। अब क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, उस तरीके से ये बात भी निकल के आती है कि भाई अलग अलग व्यू होते हैं लोगों के, ठीक है, कि क्या लोगों के लिए अच्छा है, उसके भी अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पार्टीज, अलग अलग पार्टीज, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं उनके अंदर अगर आप देखें, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, सबकी अपनी अपनी विचार है कि भाई देश के लोगों के लिए ये भलाई, ये अच्छा है, या ये पॉलिसीज बेटर है, या ये प्रोग्राम्स बेटर हैं। इस तरीके से सबके अपने अपने एजेंडे अलग हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है, वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों को अग्री करने की कोशिश करते हैं, परस्यू करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पॉलिसीज दूसरों से बेटर क्यों है। और इसके उसमें एवज में क्या होता है, वो उनसे सपोर्ट मांगते हैं इलेक्शन के दौरान कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट करिए, देखिए हमारी ये चीज जो है, हमारी ये पॉलिसीज हम बनाएंगे, ये आगे जाके आपको इस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। तो वो इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो इन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, क्योंकि सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज होते हैं कि भाई सबकी भलाई जो है वो अलग अलग, उनका सबका अपना होता है। किसी को अलग चीज, किसी को लगेगा कि पेट्रोल के दाम जो है वो गिर जाए तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर है, किसी को लगेगा कि टैक्स, इनकम टैक्स में छूट मिल जाए तो उस तरीके से उनको भलाई रहेगा। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं और उस तरीके से जो जिससे अग्री करता है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others। They seek to implement these policies by winning popular support through elections। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वो इस तरीके से करते हैं कि जब उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो जीतते हैं इलेक्शंस, तब वो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं।
इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है मीनिंग वाले पैराग्राफ में तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Okay. Does parties reflect fundamental political divisions in a society? अब इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी पार्टीज होती हैं वो क्या शो करती हैं, समाज के अंदर जो डिवीजन है अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स जो है कि भाई किसको किस हिसाब से लगता है कि कौन सी चीज बेटर है, उस चीज को दर्शाती हैं पार्टीज। पार्टीज आर अबाउट पार्ट ऑफ द सोसाइटी दस इन्वॉल्व पार्टिजनशिप। अब पार्टीज जो है उनके अंदर एक हिस्सा होता है सोसाइटी का जो जो जिसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, पार्टिजनशिप। देयर इज अ ग्लॉसरी पार्ट की पार्टिजन होता क्या है, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन। एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है किसी एक पार्टी से, किसी एक ग्रुप से या किसी एक गुट यानी कि फैक्शन से, उसको बोलते हैं पार्टिजन। पार्टिजनशिप क्या है? पार्टिजनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। इसको समझिए अच्छे से कि पार्टिजन तो वो व्यक्ति हो गया जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कमिटेड होता है, ठीक है। पार्टिजनशिप क्या होती है? एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप साइड ले रहे हो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की, एक ग्रुप की या फैक्शन की, और आप इतनी ज्यादा साइड ले रहे हो कि आप में ये समझ ही नहीं रही है कि कैसे किसी पर्टिकुलर इशू पर सही निर्णय लिया जा सके। यानी कि आप बिल्कुल एक तरीके से पूरी तरह से आप में एबिलिटी खत्म हो चुकी है, आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो कि सही क्या है गलत क्या है। बस आप उस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो तो आपने वो पार्टी जो भी वो कर रही है या जो भी बोल रही है वो आप पूरी तरह से कर रहे हो, आपकी खुद की इनेबिलिटी आ चुकी है। समझ में आया पार्टिजन और पार्टनरशिप में? Yes, ma'am. Okay. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. इसीलिए एक पार्टी को पहचाना जाता है कि वो किस चीज के लिए खड़ी हो रही है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं जो उसको वो सपोर्ट कर रही है, और किन लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के वो काम कर रही है। A political party has three components. अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल ऑफिसेस को भरती है, एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल पावर जो दी जाती है उसको। सो पार्टीज जो है कई सारे फंक्शंस भी करती हैं पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड, जब वो उनको दिए जाते हैं तो उसके बाद वो कई सारे फंक्शंस करती है। लेट्स रीड दैट। What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन हुए और बीजेपी जीत गई तो उन्होंने बस ऑफिस भर दिए और बैठ गए वो और उनको पार मिल गई, ऐसा तो है नहीं। काम भी होते हैं जो करने होते हैं। तो अब एक उसी तरीके से आपको समझ जाएगा कि काम क्या करती है पार्टी जीतने के बाद में। पहला है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले पार्टीज इलेक्शन लड़ती है। द मोस्ट डेमोक्रेसीज elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. अधिकतर डेमोक्रेसीज के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं और उनके बीच में इलेक्शन लड़े जाते हैं। पार्टीज select their candidates in different ways. पार्टीज जो इन कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीकों से चुनती हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए, वहां पर मेंबर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो चूज करते हैं कि पार्टी के कैंडिडेट्स कौन होंगे, ठीक है। In some countries such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now more and more countries are following this method. अब ज्यादा से ज्यादा countries जो हैं इसी method को follow कर रही हैं। In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. USA के अंदर तो members और supporters choose कर रहे हैं कि किसको candidate बनाना है और election लड़वाने हैं। और इंडिया के अंदर क्या होता है, जो बड़े leaders होते हैं, top leaders, वो चूज करते हैं अपने कैंडिडेट्स को कि किनको इलेक्शन लड़वाना है। समझ में आया फंक्शंस का फर्स्ट पैराग्राफ? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No. Okay. Then second point, parties put forward different policies and programs. अब पार्टीज जो है वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है सामने रखती हैं
और वोटर्स चूज करते हैं उनमें से कि कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उनके फेवर में काम कर रही है या उनके लिए सही है। अब हर किसी की जो ओपिनियन है वो अलग होती है, व्यूज जो होते हैं पॉलिसीज को लेकर के वो अलग होते हैं। समाज के अंदर, अब जैसे समाज का एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, अगर आप लोगों का भी एग्जाम्पल लिया जाए, सपोज कि आपकी क्लास जो है उससे पूछा जाए कि वेयर यू वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, अगर आपसे पूछा जाए तो कि आपको पिकनिक कहाँ जाना है, जब नॉर्मल लाइफ वापस से अपन आ जाएंगे, नॉर्मल सी पे अपन आ जाएंगे, तब की बात बोल रही हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हर किसी बच्चे का जो व्यू होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग उनकी डेस्टिनेशंस होंगी जहाँ पे वो पिकनिक के लिए जाना चाहते होंगे। उसी तरीके से समाज के अंदर भी अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फेवर करने वाले लोग होते हैं, जो अपने अनुसार जो उनको लगता है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के लिए या हमारे लिए भला करेगी, तो इसकी पॉलिसीज जो है वो सही बनी हुई है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, वो चीज यहाँ पे रखी जाती है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब इसी तरीके से ज्यादातर जो सरकारें होती हैं वो इतनी ज्यादा वैरायटी के जो व्यूज होते हैं उनको हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कई सारे सिमिलर ओपिनियन वाले जो लोग होते हैं उनको साथ में लाया जाता है और फिर उसी दिशा में उनके साथ में पॉलिसीज बनाई जाती हैं। Parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. But no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. वही चीज कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उन्होंने रखे, अब इतनी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस और व्यूज हैं, उस पर लोग अपने हिसाब से काम अपने हिसाब से सपोर्ट करते हैं। फिर क्या सरकार का काम क्या होता है, सरकार इतनी ज्यादा वैरायटी में व्यूज तो हैंडल कर नहीं सकती। तो जैसे कि इसको ऐसे समझो कि क्लास के अंदर पूछा गया बच्चों से कि पिकनिक कहाँ जाना है, अलग अलग सबने अपने वो दे दिए, कुछ बच्चों का जो है वो सिमिलर व्यूज होंगे, मेजोरिटी देखी जाएगी फिर कि कहाँ ज्यादातर लोगों की इच्छा जो है वो किस जगह जाने की है, फिर उस पर बेस्ड जो है डिसीजन लिया जाता है कलेक्टिवली। वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज होती है कि सिमिलर ओपिनियंस जो होती है उनको साथ में लाया जाता है, ग्रुप टुगेदर, और फिर उसी दिशा में पॉलिसीज जो है फॉर्मुलेट यानी कि बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा। दिस इज व्हाट द पार्टीज डू, और यही काम जो है पार्टीज का होता है करने के लिए। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। अब पार्टी जो है वो एक इतना ज्यादा जो अलग अलग ओपिनियंस हैं उसको खत्म करती हैं और जो बेसिक पोजीशंस होती हैं या बेसिक व्यू पॉइंट्स जो होते हैं, मेजोरिटी जहां होती है उसको सपोर्ट करती है। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. अब सरकार जो है उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पॉलिसीज जो है रूलिंग पार्टी की जो एजेंडा है बेसिकली उस पर लेकर के चले। रूलिंग पार्टी का क्या है, रूलिंग पार्टी यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार चला रही है उसके लिए हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, अब है थर्ड पॉइंट, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश के कानून बनाने में। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि फॉर्मली ऑफिशियल तरीके से कानून जो है उन पर बहस की जाती है और फिर उसके बाद में डिस्कशन करके और फिर उसके बाद में वोट वगैरह करके लेजिस्लेचर के अंदर उनको पास किया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप irrespective of their personal opinions। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि अधिकतर पार्टी के मेंबर्स जो हैं, सॉरी जो मेंबर्स है लेजिस्लेचर के, वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो पार्टी लीडरशिप की जो एक डायरेक्शन होती है उसी में काम करते हैं, यानी उनकी पार्टी का जो एजेंडा सेट है या जो उनकी आइडियोलॉजी है उसी पे बेस्ड काम करते हैं, भले ही उनकी खुद की पर्सनल ओपिनियंस कुछ भी हो। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, मेकिंग लॉज। Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। Please conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss all of your problems in our tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead, and God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.